Namaste, my name is Aditi, but my real name is Margarita. I'm from Spain. For me, a Krishna Day is very really special date in the year. If I can, every year I come to enjoy and to share with the family of Temple this amazing celebration because it's so devotional. It's the way we can say thank you for all things the life God give us. Also, for me, Krishna is so close. I think Krishna is a very, very good avatar. It's so happy for me to stay here. The day for me, we start today brushing the temple and prepare because we know the people is coming. And when it can see so many people is coming, it's like a big party. And it's a magic, because you feel different colors, different things, but all people have the same thing in their heart. Be heart, say thank you and enjoy. And you can sing, they start to sing 10 o'clock and finish. We don't know when it's finished. Sometimes in the middle of the night or more deep in the night. And it's all day singing, say thank you, playing. That's really special day here in the Krishna temple in Nagar Castle. For me, it's amazing experience. Okay, my name is Maria. I come from Spain, and it's my second time here in Nagar Castle and in Krishna Temple. And second time also in Krishna birthday, which is today, and I was last year also. And I had a really nice experience because I feel that there is a lot of devotion and happiness and yeah, like tribe also, with all Indian people. And I remember last year that I felt one of all. They took me also, and we were dancing, singing for Krishna, and very nice. I like a lot. Yes, today I'm enjoying. It's just starting because it's the whole day, so I will be the whole day also at night. But from now, I already enjoy the morning and all the people that is coming, the music, singing, everything. Yes, I love. Yes, okay. Under my point of view, we are very different. Our culture, Spanish culture, in some points, in other points, we are similar. Like a lot is a lot different. Like we also are devotional, but here is a lot more and a lot more authentic. I feel in general in Europe is more like that we follow church, but not feeling it. And here I can see that you all feel a lot this love, this religion, the spirituality also, and that's very nice. And also your culture is like I feel that you are a lot more family. In Europe, we are more separate, with the years more and more. But Spanish people, we are a little bit alive more than other countries in Europe, so that's similar. We are alive, we talk, we move hands, we express, and we are noisy also. So that's similar, and I like it also. नमस्कार जी सभी को श्री कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। ये जो मंदिर है हमारा कृष्ण मंदिर, चतुर्भुज मुरलीधर महाराज के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। और ये मंदिर यहाँ की जो भगवान श्री कृष्ण की स्थापना है वो पांडवों के द्वारा की गई है। और ये माना जाता है कि जो ये मंदिर है पांडवों के युग का है और पांडवों के द्वारा बनाया गया है। आज जन्माष्टमी के उत्सव पर समस्त लोग जो कुल्लू के हैं वो सब लोग यहाँ आकर हर्षोल्लास से जो है जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सबको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूँ। हरे कृष्णा। माना जाता है कि 2000 ये आज से लगभग 2000 साल के आसपास जो है, पहले माता जी की स्थापना नहीं थी यहाँ पर, तो भगवान अकेले ही थे। तो कहते हैं बाद में इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एक राजा हुए यहाँ पर जो ठावा में थे, राजा प्रीतम सिंह। तो उस समय भगवान की मूर्ति जो है दोपहर की पूजा के बाद जब शयन होती थी तो मूर्ति गुम हो जाती थी। तो बहुत विनती करने के बाद भगवान वापिस आते थे। बाद में राजा प्रीतम सिंह के समय में उन्होंने निर्णय किया कि हम राधा जी की स्थापना करेंगे यहाँ पर। तो राधा जी की स्थापना जब से हुई तो तब से भगवान स्थिर हो गए यहाँ पर।
कि प्रमुख रूप से जो है 7-8 त्यौहार मनाए जाते हैं। बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है, उसके बाद जन्माष्टमी का, रामनवमी का, और भी बहुत सारे उत्सव होते हैं, 43 उत्सव होते हैं। तो इनमें जो मुख्य हैं वो हैं दुशहरा, बसंत पंचमी और जन्माष्टमी जो है मुख्य उत्सव हैं। हाँ, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान जो है शयन करते थे, शयन करने के बाद जो है जब यहाँ से विलुप्त हो जाते थे, जब मंदिर के कपाट लगने के बाद, तो भगवान की बांसुरी जो है जंगलों में सुनाई देती थी। तो अब तो ऐसा नहीं है, अब तो परिवर्तित हो गया। मेरा नाम रमा ठाकुर है। मैं आज जो है जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर ठौआ मंदिर में आई हूँ और आज सब कुल्लूवासियों को और देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो यहाँ बचपन में ही आई, सोचो समझो कि मैं उस टाइम 9th या 10th में पढ़ती हुई थी, उस टाइम में आई थी। और इतने सालों बाद में कब से इच्छा थी कि मैंने ठौआ मंदिर जाना है। यहाँ का एक खास महत्व बताया जाता है कि ये वृंदावन से ही आए हुए हैं, यहाँ दूसरा वृंदावन कहा जाता है। तो यहाँ जो एक आप देख सकते हैं कि बाहर विष्णु जी की मूर्ति लगी है, वो है जो ये खुद स्वयंभू है। यहाँ अंदर जो है बांके बिहारी की है, कृष्ण जी की है, ये भी स्वयंभू है। यहाँ की यही खास मान्यता है। और ठौआ तो अपने आप में एक अद्भुत स्थान है। यहाँ के ऐसा लगता है कि वही मानसिक शांति जो मिलती है हमें अपने भगवान के चरणों में आके, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ आके। अब आप देख सकते हो ना पीछे कितनी भीड़ है आई हुई यहाँ श्रद्धालुओं की। सब अपने अपने ढंग से जन्माष्टमी का पर्व बना रहे हैं, अपने अपने भजन कीर्तन अपने ढोलकी लेके। हम भी वो जो आज स्पेशल कुल्लू से आए हुए हैं खास इस मौके पर, हमने भी सुबह से ही अपने हाजिरी लगा दी है प्रभु जी के चरणों में और हमने खूब भजन कीर्तन किया। आपको पता है बड़ा मैं तो नाचने में भी कोई कसर नहीं छोड़ती हूँ। तो इसी पर मैं तो इतना कहना चाहती हूँ कि सब एक बार जो जरूर नगर के ठौआ में आप जरूर आएँ और प्रभु के उसमें अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। और जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की सब वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम सुरेखा है, हम निशाला से आए हुए हैं और जैसे आप जानते हो कि हम यहाँ पे आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा आप जानते हो कि ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये नगर ठौए में स्थित है और नगर से थोड़े से कुछ किलोमीटर ऊपर ही है ये मंदिर। और आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे पीछे भी अभी भजन मंडली भजन कर रही है। ये भजन ये सब अपनी आस्था है, एक तरह से अपने कृष्ण के प्रति एक भक्ति है ये। और ये अब ये कृष्ण जन्म है, ये यहाँ पे रात को 12 बजे होगा और वहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के जन्म के बाद जैसे ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे। ठीक है।